અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત ગીત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી જાણી તેણે જાણી છે. જય સદગુરુ. સ્વાધ્યાયમાં શ્રી અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પૃષ્ઠ સંખ્યા 27 વિચાર નોંધ 2. 20/5/1957ની ડાયરી. હવે જ્ઞાનીઓનું નિરૂપણ. પહેલા જે નિરૂપણ કર્યું તે જ્ઞાની જેવા લાગે પણ હજી તથારૂપ જ્ઞાની થયા નથી, પ્રોસેસમાં છે. હવે વાસ્તવિક જ્ઞાની જે છે, ભાવ જ્ઞાની, એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. શ્રી વીતરાગ વિજ્ઞાન પ્રણીત જીવાદી તત્વોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન થયું હોવાથી યદ્યપિ અનેક શાસ્ત્રોનું પાંડિત્યપૂર્ણ ભાન ન હોવા છતાં પણ હું આ શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ ગોચર સ્વચતુષ્ટયુક્ત આત્મા દેહાદિ પર પૂતગલોથી અને અન્ય જીવોથી ભિન્ન છું. એ પ્રકારના પરમાર્થ શ્રદ્ધાન અને અનુભવ ભેદ વિજ્ઞાનપૂર્વક જેમને થયા છે અને તેના પરિણામે વારંવાર જેઓની પરિણતિ આત્માભિમુખ થાય છે અને તેથી આત્માનો સ્વસંવેદનનો શાંત રસપ્રધાન નિરાકુળ આનંદ જેમને વર્તે છે, તેમને ક્વચિત પૂર્વ પુણ્ય ઓછું હોવાથી દેહાદિક સંબંધી, લોકકીર્તિ સંબંધી ઇત્યાદિ પરમાર્થે તુચ્છ છે એવા અને સંસારી જીવોને જેનો મહિમા છે એવા બહારના અનુકૂળ સંયોગોનો અસદ્ભાવ વર્તો હોવા છતાં જ્ઞાનીઓ કહેવામાં આવ્યા છે. પહેલાથી જસ્ટ ઉલટું કે એમને શ્રી વિતરાગ વિજ્ઞાન પ્રણીત જીવાદી તત્વોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન થયું હોવાથી, ભગવાને જે તત્વોનું સ્વરૂપણ કીધું છે એનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થયું છે. આ આમ જ છે. ઇદમેવ ઈદૃશ્યમેવ તત્વમ નાન્ય ચાન્યથા ઇત્યકંપાય સાંભોવત સન્માર્ગે સંશયા રુચિ. આવું થઈ ગયું છે કે આ જે તત્વ છે ઇદમ એ ઈદૃશ્યમેવ,
આ જ પ્રકારથી છે. નાન્ય અન્ય નથી, નાચ અન્યથા અન્યથા નથી. એવા પ્રકારની જેને અકંપ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ છે અને જ્ઞાન પણ થઈ ગયું છે. એક જીવ તત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ જાય તો પછી બધા તત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય. એક જીવ તત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન ન થાય તો બધા તત્વોનું જ્ઞાન એ માત્ર થિયોરિટિકલ છે, બૌદ્ધિક છે. તો એ જીવ તત્વનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે? તો અહીંયા કે છે, હું આ શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ ગોચર સ્વચતુષ્ટયુક્ત આત્મા દેહાદિ પર પૂતગલોથી અને અન્ય જીવોથી ભિન્ન છું. આજે હું છું. કોણ છું? આજે હું છું તે કોણ છું? તો કીધું કે શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ સ્વરૂપ સ્વચતુષ્ટયુક્ત આત્મા. શુદ્ધ તો હું એટલા માટે છું, મારા અંદર કોઈનો પ્રવેશ નથી, કોઈ પરદ્રવ્યથી હું સંયુક્ત નથી, એટલે હું શુદ્ધ છું. બોલો, આત્મામાં કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્ય આવે? એક પેલી સ્ફટિક મણી હોય, સ્ફટિક મણી જોઈ છે? સ્ફટિક पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच आता है, ट्रांसपेरेंट कांच, वो जो मणि जैसा आता है. अब उसके सामने आप लाल कलर का कोई भी वस्तु रख दो, उसके सामने फूल रख दो, लाल कलर की डिब्बी रख दो, लाल कलर का कुछ भी रख दो, तो उस स्फटिक मणि में लाल होगा कि नहीं होगा? स्फटिक मणि है, वो हमको लाल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो वास्तव में वो लालिमा है, वो उसकी अपनी है कि उसके निमित्त से पैदा हुई है? अच्छा, अपन कांच के सामने खड़े रहते हैं और कांच में अपना प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तव में कांच है कि कोई और है? कांच का अपना स्वभाव क्या है? रिफ्लेक्ट करना. तो वो अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, वो वास्तव में कांच का है कि कुछ और है? देखो, अभी यही समझना अपने को. अपनी जो विभाव पर्याय है उसको समझना है. अपनी जो विभाव पर्याय है वो अपना तत्व नहीं है, ये समझना है अपने को. बहुत जोरदार बात है. देखो, कांच का मतलब दर्पण का स्वभाव और वो जो उसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है उसका स्वभाव, इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? कोई फर्क दिखता है? नरेश भैया, हाँ, आंखें खोलो भाई, बताओ. स्वाध्याय के समय ध्यान नहीं. ये जो कांच में प्रतिबिंब बन रहा है, गहराई से समझना. वस्तु समझेंगे नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? कांच का स्वभाव और प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार प्रकार वगैरह सब है. तो उस कांच के स्वभाव में और उस प्रतिबिंब में कोई अंतर है कि नहीं? बोलो. हाँ. अच्छा, कांच का क्या स्वभाव है? रिफ्लेक्ट करना. वो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करता है?
यही तो अभी मैं समझाता हूं। इसके सामने आकर के खड़े हो जाओ, ठीक है? मान लो थोड़ा स्कोर घिस दें तो काच हो जाता है, इसके आपका चित्र दिखेगा, ठीक है? तो ये कांच का स्वभाव रिफ्लेक्ट करना है, पर उसमें जो आपका चित्र बना उसका स्वभाव रिफ्लेक्ट करना है, ये बात समझनी है। इसका मतलब वो जो अंदर प्रतिबिंब बना है वो कांच के स्वभाव से अलग है, इसलिए उसको कांच का अंश नहीं माना जाएगा। वो कांच का विकार है, कांच का स्वभाव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखो, उसी प्रकार से वो ट्रांसपेरेंट मणि है, स्फटिक मणि, वो लाल कलर की वस्तु से उसमें सब लाल ही दिखता हो, तो वास्तव में उसके मणि के अंदर लाली है क्या? उसका स्वभाव लाली नहीं है, उसका स्वभाव तो क्या है? स्फटिक पारदर्शी स्वभाव है। वो लाली किससे उत्पन्न हुई है? हाँ, उसकी अपनी स्वभाव नहीं है। ऐसे स्वभाव विभाव को जो जानता है, देखो अभी अपने अंदर क्रोध हुआ, क्रोध अपना स्वभाव है क्या? अपने स्वभाव से उसका मिलान करो तो वो दोनों अलग अलग दिखेंगे। कैसे अलग दिखेंगे? अच्छा, आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत रहना। मतलब बाकी सब देखो तो एक ज्ञान उसको मानो कि जानना उसका स्वभाव है, चैतन्य उसका मूल स्वभाव है, बाकी सारे भी हैं। तो क्रोध किसी को जानता है क्या? क्रोध को ज्ञान जानता है, क्रोध किसी को नहीं जान सकता है। इसका मतलब आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है और क्रोध का स्वभाव ज्ञान नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो निराकुलता है और क्रोध का स्वभाव निराकुलता नहीं है। ज्ञान तो हमेशा रहता है, आत्मा तो हमेशा रहता है, क्रोध हमेशा रहता नहीं। अब हम किस दृष्टि से उसको अपने आत्मा का स्वभाव माने? हाँ, इसलिए उसको स्वभाव नहीं मानना, क्या मानना? विभाव मानना। और विभाव तो स्वभाव है नहीं, जो स्वभाव है वही स्वभाव है। विभाव को स्वभाव क्यों मानना? जो विभाव को अपना स्वभाव मानता है, अपना भाव मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। इसलिए यहां शुद्ध का ऐसा जो शुद्ध स्वभाव है, उसका जिसको श्रद्धा और ज्ञान होता है वो ज्ञानी होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। भले अपने अंदर कितने भी विकार हो जाएं, परंतु वो विकार हम कभी नहीं हो सकते। विकार के समय में भी उस विकार को जानने वाला ज्ञान है, वही हम रहेंगे, विकार हम नहीं रहेंगे। जिसकी दृष्टि उस ज्ञान तत्व पे पड़ गई है, उसको विकार ठहरता ही नहीं है। ठहरेगा तो तब जब उसको अपना माना जाएगा। अब वहां तो उसको अपना ही नहीं माना जा रहा, वहां क्या है? इसको जो जानता है वो मैं हूं, विकार में नहीं। भले हो रहा है ना, पर ये थोड़ी देर में होगा और जाएगा। ये शुद्धि कहलाती है। स्नान कर लेना वो शुद्धि नहीं है, कपड़े अच्छे पहनना वो शुद्धि नहीं है। शुद्धि का मतलब ये है कि आप अपने को बराबर जानो, पर को बराबर जानो, और पर के निमित्त से उत्पन्न अपने विकारों को भी बराबर जानो, बस। तीनों को बराबर जानते रहो और जरा भी विचलित ना हो। हो सकता है ऐसा कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है और मैं बिल्कुल भी विचलित ना हूं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर आप उस क्रोध को जानने का प्रयत्न करो तो हो सकता है। हाँ, तो वही तो ज्ञान है।
जानने का प्रयत्न करना वही तो ज्ञान है। जो अपने आप को ऐसा मानेगा कि मैं इसको जानता हूं, ये मैं नहीं हूं, ये ज्ञान दशा को ऐसे अचानक थोड़ी प्रकट हो जाएगी। ज्ञान दशा पुरुषार्थ से, अभ्यास से प्रकट होती। सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला, और हम ऐसी भावना कर रहे हैं कि ये जो सिर दर्द हो रहा है उसको जो जानता है वो मैं हूं, सिर दर्द में नहीं। बोलो, उसको सिर दर्द का दुख होगा? सिर दर्द होगा, सिर दर्द का दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर दर्द को वो अपना ही नहीं मानता है। सिर दर्द होना अलग बात है और उसका दुख होना अलग बात है, उसमें व्याकुल होना अलग बात है। ये हो रहा है, मैं जान रहा हूं। दर्पण को गालियां दो तो उसको दुख होता है? कांच को बहुत गालियां सुनाओ आप जाकर, उसको दुख होता है? नहीं होता है। उसके आगे काला मुंह करके जाओ, उसको कोई दुख होगा? वो जैसा है वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ज्ञान भी जैसा है वैसा जानेगा, इसलिए वो शुद्ध है। क्या जोरदार बात है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, परमार्थ ज्ञानी को हमेशा ये लक्ष्य रहता है, इसलिए वो हमेशा तरोताजा रहते हैं हर परिस्थिति में। कैसे रहते हैं? सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ऐसी दृष्टि होगी तो मस्त रहेंगे। ऐसे थोड़े कि मैं बहुत आनंद में, वैसा कहने से थोड़े आनंद हो जाता है। ये दृष्टि जब ये जागृति रहती है तब उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर जागृति नहीं है तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा अपने ऊपर। जब ज्ञान की जागृति नहीं रहती है, स्वभाव की जागृति नहीं रहती है, तो हर वस्तु, हर उदय अपने ऊपर प्रभाव डालेगा। उस प्रभाव से हम अछूते नहीं रह सकते हैं, फिर अंदर विचलन होता है, अपसेट हो जाते हैं। और ये जागृति रही, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कब रहेंगे? ऐसी दृष्टि। ये जो कोई सामने वाला व्यक्ति अपने को मान दे रहा है, उस मान को जो ज्ञान जानता है वो मैं हूं, तो उससे क्या होगा पता है? उससे वो खुश नहीं होगा। और कोई अपमान कर रहा है और ऐसा उसको लक्ष्य है कि इसको जो जानता है वो मैं हूं, तो वो दुखी नहीं होगा। दर्पण की प्रशंसा करो, कांच की, खुशी होती है उसको? नहीं। और उसकी निंदा करो, उसको खुशी होती है? नहीं होती। अगर आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा की भावना करने है, तो दर्पण को हमेशा याद रखो। ये जो दर्पण है ना, वैसा ही मेरा सुज्ञान है। मैं ज्ञान दर्पण हूं, मैं चैतन्य दर्पण हूं, वो पौद्गलिक दर्पण है। पर उसका जैसा स्वभाव है वैसा के वैसा स्वभाव मेरा है।
शुद्ध। श्रद्धा नहीं हो रही ने, ऐसी श्रद्धा है ज्ञानी को। તમે કહો છો એ તો બરાબર છે, પણ આ શું છે? પણ એટલે પેલો મોઢો લટકેલો ને લટકેલો જ હોય. પણ આટલો कोई सહેલો थोड़ो હોય. तो भाई श्रद्धा करना तो सहज ही है. क्यों? आत्मा का स्वभाव. जो स्वभाव होता है वो तो सहज ही होगा ना. हम दूसरी वस्तुओं में इतने उलझ चुके हैं कि हमको सरल वस्तु कठिन लगती है और कठिन वस्तु सरल लगती है. हमको हर समय केवल ज्ञान रूप रहना है, इसमें क्या प्रॉब्लम? बताओ. हमेशा शांत, निराकुल, समता भाव में ज्ञान रूप रहना है, बस. उसमें कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी. बाकी में मेहनत करनी पड़ती है. बहुत गुस्सा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. सामने वाला निमित्त चाहिए, अंदर कर्म का उदय चाहिए, सब चाहिए. मान करना है तो भी मेहनत. मायाचारी करनी है, कितनी मेहनत, याद रखना पड़ता है. पहले मैं ऐसा बोला था, अब मैं गलती से कहीं ऐसा नहीं बोल जाऊं, इसलिए पहले वाला याद रखना पड़ता है. एक झूठ बोलते हैं अपन, और फिर इसको छुपाने के लिए अपने को पहले जो बोले थे वो सब याद रखने पड़ेंगे अपने को. पहले ऐसा बोला था, अभी अगर मेरे शब्द अलग निकलेंगे तो इसको पता पड़ जाएगा. तो देखो, झूठ बोलने में, झूठ को बनाए रखने में, छिपाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती. और सीधा बोलो, मेहनत करनी पड़ती है? कुछ नहीं. जो है सीधा रहता नहीं, सीधा रहने नहीं आता है, कठिन काम ज्यादा कर. शुद्ध, जो शुद्ध होता है वो नित्य होता है, इसलिए दूसरा शब्द लगाया नित्य, हमेशा रहता है. प्रॉब्लम क्या पता है? कि जो ज्ञान तत्व है वो अंदर अंदर चलता है ज्ञानियों के, बाहर में उसके कोई विशेष लक्षण दिखते नहीं. जैसा शरीर सामान्य व्यक्ति का होता है वैसा ही शरीर ज्ञानी का होता है. जैसे ही, क्योंकि मनुष्य नाम कर्म सबके एक जैसा है. मनुष्य नाम कर्म के कारण से सभी बाह्य क्रियाएं एक जैसी होगी. अज्ञानी जैसा खाता है वैसे ज्ञानी भी खाएगा. अज्ञानी जैसा बोलता है वैसा ज्ञानी भी बोलेगा. अज्ञानी जैसे सोता है वैसा ज्ञानी भी सोएगा. अज्ञानी जैसे कपड़े वगैरह पहनता है वैसा ज्ञानी भी पहनेगा. थोड़ा थोड़ा अंतर होगा सादगी वगैरह का, पर कोई विशेष तो होता नहीं है. जैसे लौकिक व्यवहार अज्ञानी करता है वैसा लौकिक व्यवहार ज्ञानी भी करता है. इसलिए कोई विशेषता नहीं दिखती है बाहर से. इसलिए उसको ज्ञान पर और ज्ञान तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो पाता है. पर अंदर सब बदल जाता है, सारी चीज. उसका पता कैसे चले? बस उसके पते प्रसंग में चलेगा. जब भी ऐसे प्रसंग बनेंगे उसमें उसकी प्रसन्नता, उसका धैर्य और वो नहीं जाएगा. संयोग में, वियोग में, उदयों में धीरज नहीं छूटता है. वो विचलित नहीं होगा ज्ञानी. अज्ञानी विचलित हो जाएगा. बस वो प्रसंग आने पर पता पड़ेगा. कोई निंदा करेगा, ज्ञानी विचलित नहीं होगा. अज्ञानी की तरह अगर वो भी उसका प्रतिकार करने लग जाए तो फिर वो ज्ञानी नहीं है. कि भाई તમે આમ કેમ કહો છો, મારી કોઈ ગલતી નથી. अगर वो इस प्रकार का रिएक्शन करे तो समझना कि अभी वो ज्ञानी, उसको सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ नहीं. कोई उससे वस्तु छीन ले,
उसके अधिकार की वगैरह कोई भी वस्तु छीन ले, और अगर वो सामने वालों को दोषी माने, उसका बदला ले उसको, तो समझना कि वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी का तो ऐसा होता है कि जो वस्तु दूसरे ने ले ली वो गई, वो मेरी थी नहीं, तो क्यों प्रयत्न किया जाएगा वापस लेने का। ठीक, कोई उसकी बहुत प्रशंसा करे और प्रशंसा करने वालों को खूब दे डाले और उसको अंदर से बड़ा आनंद आता है, तो समझना कि वो ज्ञानी नहीं है। कोई अपमान करे और वो बहुत अपमानित हो, अंदर से आंख बबूला हो जाए, तो वो ज्ञानी नहीं। ऐसे समय में ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान ऐसे अवसरों में अपने को करनी चाहिए। सभी व्यवहार उसके अज्ञानी जैसे ही हो तो फिर अंतर ही नहीं रहेगा कुछ। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब अज्ञानी जैसा होगा, क्योंकि ये मनुष्य नाम कर्म के उदय से होते हैं, और मनुष्य नाम कर्म का उदय तो उसको भी है, परंतु इसको मिथ्यात्व का उदय नहीं है। और मान अपमान, हर्ष शोक निंदा, ये क्रोध आ जाना, ये सब मिथ्यात्व के उदय से होते हैं, और उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए नहीं होगा। हाँ, तमें शू कहो? ऐसा नहीं है चक्रवर्ती को मारामारी करते हैं ना, वो कोई आगे होके थोड़ी करते हैं, वो आगे होके कोई मारामारी नहीं करते हैं, वो तो उससे कोई लड़ाई करने आए तो फिर प्रतिकार तो करना ही पड़ता है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, ज्ञान उनको करना थोड़ी है। रुचिपूर्वक जो हिंसा करता है, रुचिपूर्वक जो झूठ बोलता है, अपनी मर्जी से जो चोरी करता है, अपनी मर्जी से अब्रह्म करता है, समझ जाना वो ज्ञानी नहीं। वो तो उसके कोई आ गया, अभी दूर से सांप आ जाएगा, मेरे शरीर पे लग गया, तो हो सकता है मेरी इतनी ऊंची दशा ना हो तो मैं उसको हटाऊंगा, हटाने में हाथापाई होगी, उतनी तो चौथे पांचवें गुण स्थान में चलता है, होता है। मुनि हो तो वो भी नहीं करे, चढ़ जाओ, जहां भी चढ़ना हो चढ़ो, सिर पे बैठना तो सिर पे बैठो, काटना हो तो काटो। मुनि कैसा है, पर नीचे के गुण स्थान वालों के ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि अभी उसको क्या है पता है, अभी घर है, परिवार है, उसकी भी चिंता है, तो इस कारण से वो अपने आप को बचाता है। दूसरे पर उसको ऐसा नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगा इसके कारण से, उसको अंदर तो ऐसा ही है, अगर मेरी मृत्यु होगी तो मरूंगा, नहीं होगी तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है। पर अभी भय संज्ञा थोड़ी बाकी है, अंदर का विचलन नहीं है। तुमको कुछ प्रश्न पूछना, बोलो, माइक में बोलो। हाँ, आप बोले कि ऐसा किसी कोई अपना सामान ले ले तो फिर उसका हो जाएगा, लेकिन जैसे आपने पहले बोला था, अगर माँ अपने बेटे को डांटती है तो इंटेंशन तो वो होता है ना सबक सिखाने को। अभी हम उसे क्रोधित तरीके से समझाए गुस्से में कि ये मेरा है, लेकिन हम उसको सबक सिखा रहे हैं ना, और उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है, पर उसका सामान से क्या संबंध? आप बोले ना कि अगर उसने चोरी करे तो उसका कर देने, हमारा नहीं है अभी। अच्छा, अपना कोई चोरी करे तो वो अपने को सिखाने के लिए चोरी करता है तो बात अलग है, पर चोर सिखाने के लिए कोई करता है? आप उसको सबक सिखाओगे उस चोर को। देखो है, माँ तो उस बच्चे को अपना समझती है इसलिए उसको सबक सिखाती है, परंतु चोर को हम कोई अपना थोड़ी समझते हैं। अपने अंदर अगर ऐसी भावना हो कि वो माल वापस लेना है तो वो सबक सिखाना नहीं कहलाता है, उसको सबक सिखाएंगे पुलिस वाले। हमको क्या करना कि भाई हमारे घर में इतनी चोरी हो गई है, ऐसा करके अपने को रिपोर्ट लिखा देना पुलिस में, अब इसको जो करना है करो, हमको कोई सबक सिखाना नहीं।
सबक सिखाने जाते रहेंगे तो हम उलझ जाएंगे। इसलिए अपने को क्या सोचना, मेरी किस्मत में नहीं था, इतने समय तक उसका संयोग था, अब कोई ले गया, ले जाओ। बहुत विकल्प नहीं करना उसका। और ज़्यादा बड़ा साधक हो तो वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराना। पुलिस में रिपोर्ट कराएगा तो क्या होगा पता है, आपको 10 बार पुलिस थाने में जाना पड़ेगा आपको। आप इतने थक जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे उससे तो ये है कि भाई जिसको ले जाना, मेरे को कुछ नहीं करना है, आप छोड़ो इनको, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है। तो आप चोर के कटघरे में आ जाओगे बार बार ऐसा जा करके। आ भाई पुलिस थाना में કેટલા વખત જાય છે, કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે આને અંદર જ કંઈક दोष છે, ऐसा हो जाएगा फिर। इसलिए कोई युक्तियां मत लगाओ, आप तो जो गया उसको जाने दो, झंझटों में मत पड़ो। हाँ बस वो उसका था, पिछले किसी जन्म में हमने उसका छीना था अथवा किसी और से छीना था, वो अब वो ले गया, उसका था तो वो ले गया, बस हम तो रह गए ना, हमारा क्या गया। जो अपने आप को चैतन्य आत्मा मानता है वो सब ये सब चीजें नहीं करेगा, रिपोर्ट लिखाना लेना। क्यों? क्योंकि आत्मा तो रह गया ना, क्या ले गया, वो घर में से सामान ले गया, टीवी ले गया, ये ले गया, आत्मा का क्या ले गया, आत्मा ले गया, हमको ले गया वो। अगर इस शरीर को भी किडनैप करके ले जाए तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ले जा सकता है, तुम मुझे नहीं ले जा सकता। ऐसा ज्ञान रखना पड़ता है। ये ज्ञानी होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं और ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, वो ऐसी परिस्थिति में फिर ना आ तो न्याय है, न आ तो आम करवो ज पड़े, न आम न करिए थोड़ो चाले, न ऐसा करके वो सब करेंगे। तो उसके अंदर तो लोभ पड़ा हुआ है अभी इसको ऐसा नहीं हुआ है कि जो जावे सो मेरा नहीं, इस पर श्रद्धा ही नहीं है उसको। ना तो मारो જ હતું ને, मैं कमायो तो नहीं, એટલે मार, ऐसा नहीं है। शरीर भी हमारा नहीं है तो दूसरी चीजें हमारी कैसे। हाँ, आप इतना करो कि अपनी सुरक्षा रखो, सावधानी रखो, ताला लगाओ, ये करो वो करो, पर फिर भी जाना होगा तो वो जाएगा। कितने भी ताले लगाओ, जो जाना है वो जाएगा। ये चीजें समय आने पर अपने को इन सब चीजों की श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है कि अज्ञानी हमेशा रिएक्ट करेगा और ज्ञानी नो रिएक्शन, बने वहां तक कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस उसकी सहनशीलता से बाहर हो जाए, मतलब भूमिका अनुसार जो होता है, चौथा पांचवा गुण स्थिति। फिर रिएक्शन भी कैसी करेगा पता है, सामने वाले को कोई नुकसान ना हो, ऐसा रिएक्शन होगा। जैसे भूख लगी है बहुत, तो पहले तो सहन करेगा, किसी को नहीं कहेगा, फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, एक दिन सहन किया, फिर उसको सहन नहीं होता है, अब तो खाना ही, फिर घर वालों में किसी को होगा, भाई आप भोजन बनाओ तो मेरा ध्यान रखना, मुझे भी भोजन करना है। पर वो किसी को छीन के नहीं करेगा, किसी की चोरी करके नहीं करेगा। अब उसने कर्मों का उदय आया तो रिएक्ट किया, कैसे किया, बड़ी शालीनता से रिएक्ट किया उसको, ऐसे। और भी जितने भी संसार में ज्ञानी लोग होते हैं उनको भी हो जाती, जैसे कोई राजा वगैरह है पर ज्ञानी है, भरत जी जैसे को कोई राजकुमारी पसंद आ गई, आती हो, भरत जी ने 60 कितने विवाह किए, बहुत से तो ऐसा नहीं कि नापसंद से किए होंगे, सब ने दिए होंगे, ऐसा नहीं, बहुत से विवाह उन्होंने अपनी पसंद से किए। और वो बड़े प्रेम से कहता है, देखो मुझे ना तुमसे शादी करनी है,
तुम, अब वो सामने वाली अगर प्रेम से राजी हो तो कर लेता है, और वो जरा सा भी असहमत जताए नहीं करनी। अगर प्रेम से पुण्य के उदय से अगर मिले इच्छा हो रही है, परंतु उस इच्छा की पूर्ति वो उसके पुण्योदय से हो तो ठीक है, नहीं तो छीना झपटी नहीं नहीं, कैसे नहीं की, रावण की तरह नहीं करेगा। रावण ने क्या किया, यही किया कि रावण को सीता पसंद आई। अगर रावण प्रेम से कहता कि भाई मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, और वो मान जाती, तो रावण को कोई दोष नहीं था, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था उसका। परंतु वो मना कर रही है तो भी तो अब वो पाप कर रहा है। आपसी सहमति से तो ज्ञानी ऐसे होते हैं, ज्ञानी भी रिएक्ट करते हैं, उनकी भावनाएं नहीं होती ऐसी, सारी भावना होती है, परंतु पुण्य के उदय से सहज मिल रहा है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, बनारसी दास जी तुलसीदास जी दोनों का है। उनके घर चोर आए, तुलसीदास जी का है, तो 2 पोटले ऐसे बनाए और ले जा रहे थे, तो एक उठा ना एक नहीं उठा, उतने में उनकी तुलसीदास जी की नींद खुल गई, तो एक लेके भागा क्योंकि मालिक जाग गया। तो तुलसीदास जी दूसरा पोटला लेके उसके पीछे पीछे भागे, और वो चोर समझेगा यार इसने मेरे को जान लिया, इसलिए मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। फिर उसको दौड़ के पकड़ा, फिर वो घबरा गया कि महाराज सॉरी, मेरे को बहुत भूखा था, 2-3 दिन से मेरे घर में खाने का नहीं था, इसलिए। अरे मैंने कहा मैं तेरे को कोई कहने वाला थोड़ा हूँ, ये तुमने एक पोटला रखा था वो देने आया हूँ, तुम ये भी ले जाओ। तुमने बड़ी मेहनत करी, घर में से इधर उधर ढूंढा और ढूंढ के पैक किया और वहीं छोड़ के आ गए, ये ले जाओ, मैं तो तुम्हारे घर पे रखने आ रहा हूँ इसको, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ज्ञानियों के ऐसी होती है कि भाई तुमको, मुझे लगता है इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है। हाँ, सपोर्ट नहीं किया उसको, संतत्व है ये, सपोर्ट नहीं है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है, समझ में नहीं आ सकती अपने। उससे क्या हुआ पता है, उसने चोरी करना छोड़ दिया। संतत्व का प्रभाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े डाकू भी उसके प्रभाव से सब छोड़ देते हैं सारी चीजें, ये प्रभाव होता है। और अज्ञानी लोग कैसे होते हैं पता है, चोर है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए अपने को उसको जेल में बंद करवा देना चाहिए, वो कभी नहीं सुधरेगा। और संतों के पास सुधर जाते हैं सब, कोई बात नहीं भाई। हाँ, विनोबा जी के पास चंबल के डाकू ने हथियार रख दिए, निर्भय होना पड़ता है, जो करना हो करो, हिम्मत चाहिए। जो जान हथेली पे लेके चलते हैं ना, जिनको मरने की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती ना, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तो अपन बच बच के अपन दिमाग से जीते हैं। संत लोग होते हैं वो दिल से जीते हैं, हम सब दिमाग से जीते हैं। हम समाज में रहते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी सामाजिक हो चुकी है, तो सामाजिक व्यवस्थाओं में ये न्याय अन्याय वगैरह चलता है। बाकी ऊपर ये न्याय अन्याय वाली कोई चीजें चलती नहीं है। बात मस्ती से जियो बस। जो भी करुणा भाव इतना होता है, विचारों को चाहिए ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, खुश रहना। अब हम चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पता है, इसका दूसरी जगह से चोरी करेगा, इससे अच्छा कि मेरे पास ले जाए। क्योंकि अगर दूसरी जगह से चोरी करेगा तो उसको तो ज्यादा तकलीफ होगी, मेरे को तो तकलीफ कम हो। अगर मैं इसको चोरी नहीं करने दूंगा ना, ये दूसरी जगह करेगा क्योंकि इसको चाहिए, और दूसरी जगह करेगा तो उसको तो वो पिटवाएगा और मरवाएगा, तो उस और जो जिसकी चोरी करेगा उसको भी तकलीफ होगी। यस,
तो ये दूसरे को भी भला कर रहे हैं अपन, कि कहीं और ये नुकसान नहीं कर दे, मेरा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितनी ऊंची ऊंची भावनाएं, इन भावनाओं से व्यक्ति मुक्त होता है। ऊंची भावनाएं रखनी चाहिए। तो सच्चा ज्ञानी ये होता है जिसको अपने आत्मा का श्रद्धान है, मैं ये शुद्ध नित्य अनुभव स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, अमूर्तिक। ये सच्चा ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान है वो पांडित्य है। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की, शुद्ध आत्मदेव की। ओ जय सद्गुरु।